हेलो गाइस, वेलकम टू विद्यामित्र एकेडमी। चलो तो हमारा आज का टॉपिक है डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन का लास्ट एक्सरसाइज 1.5 का क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 3 का सब क्वेश्चन 3। चलो तो आज का क्वेश्चन है हमारा, इफ x is equal to cos t and y is equal to e to the power mt, then show that 1 minus x square into d2y by dx square minus dy by dx minus m square y equal to 0। अब इसको सॉल्व कैसे करना है वो हम देखेंगे यहाँ पे। सो और फर्स्ट फंक्शन इज x इज इक्वल टू cos t एंड y इज इक्वल टू e to the power mt, e to the power mt. So those function are parametric function where the parameter is t. So differentiate given function with respect to t. Okay. So first one, differentiate with respect to t. We get dx by dt is equal to, we know the differentiation of derivative of cos t. So derivative of cos t is minus sin t, right? And then differentiate with respect to t, we get, so derivative of y with respect to t is dy by dt is equal to e to the power mt का derivative. So we know the derivative of e to the power x, d by dx of e to the power x, so which is equal to e to the power x as it is, like this e to the power mt, derivative of mt. So e to the power mt into derivative of mt, so that is m, derivative of mt with respect to t, that is m. So we get the answer, dy by dt is equal to m into, write down first m into e to the power mt. Say this equation number 2. Okay, so this one is equation number 1 and this is equation number 2. From 1 and 2 we have to find dy by dx first and then after d2y by dx square. Okay, so from 1 and 2 or directly we can write dy by dx is equal to, now dy by dx is equal to dy by dx equal to dy by dx is equal to dy by dt upon dx by dt. So put all these values. Dy by dt is nothing but m into e to the power mt, upon dx by dt is equal to minus of sin t. So we know the value of e to the power mt. Then we know the value of e to the power mt, right? So e to the power mt is nothing but y. Okay, so this is given, e to the power mt is equal to y. So e to the power mt, replace this e to the power mt by y. आपको रिप्लेस करना है e to the power mt को। चलो तो यहाँ पे क्या आएगा, देखिए आप आगे क्या होता है, dy by dx is equal to m into e to the power mt, इसके जगह पे y पुट करना है, अपॉन sin t है क्या हमारे पास, sin t तो नहीं है, sin t नहीं है तो क्या करना है, यहाँ पे मैं रेफरेंस के लिए लिखता आपके लिए हम, ठीक है, इस बॉक्स में जो है वो आपको काम आने वाला है आगे, sin स्क्वायर t प्लस cos स्क्वायर t इज इक्वल टू 1। ओके, प्रॉपर्टी तो मालूम है, cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। सो ओनली हमें sin स्क्वायर t मालूम नहीं है, तो sin स्क्वायर t इज इक्वल टू कितना आएगा, 1 माइनस cos स्क्वायर t, 1 माइनस cos स्क्वायर t आएगा, लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट किया मैंने इसको। सो sin स्क्वायर नहीं चाहिए मुझे, sin t चाहिए नीचे, राइट, ये माइनस साइन ऊपर दे दो, इसका काम तो हो गया। ओके, sin t चाहिए तो मुझे क्या करना पड़ेगा, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, स्क्वायर रूट ऑफ sin स्क्वायर t इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस cos स्क्वायर t, like square and square root get cancelled, therefore sin t is equal to 1 minus cos square t under root 1 minus cos square t, but we know the value of cos t is x। आपको मालूम है अगर cos t x है तो cos square t कितना होगा, x स्क्वायर, सो लिख लो यहाँ पे 1 minus x स्क्वायर। ओके, चलो तो sin t का वैल्यू मिल गया आपको, यहाँ पे लिख लो sin t के जगह पे लिखना है आपको 1 minus t स्क्वायर, 1 minus not t square, 1 minus x square। okay,
चलो यहाँ से लिख लिया मैंने, यहाँ से ये वाला वैल्यू sin t का यहाँ से कर लिया, ओके, क्योंकि हमें ये प्रॉपर्टी मालूम है, राइट। सो अकॉर्डिंग टू दैट प्रॉपर्टी sin t इज इक्वल टू √1 माइनस x स्क्वायर। समझ रहे? नेक्स्ट क्या करना है आपको, ये जो 1 माइनस एक्स स्क्वायर जो है डिवाइड, वो यहाँ जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। उसके पहले आप स्क्वेयरिंग भी कर सकते हो, उसके पहले स्क्वेयरिंग भी कर सकते हो। एक काम करो, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड कर लो। क्यों स्क्वेयरिंग करना है? स्क्वेयरिंग करने का मतलब क्या है, यहाँ पे देखो हमें d2y/dx² भी चाहिए ना। एक बार स्क्वेयरिंग तो कर लो, देखेंगे क्या हो जाता है। क्योंकि यहाँ पे स्क्वेयरिंग का मतलब, स्क्वेयरिंग क्यों करना है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर जो है वन रूट में नहीं, 1 माइनस एक्स स्क्वायर जो है वन रूट में नहीं, तो वन रूट निकालना पड़ेगा। इसके लिए स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड करना पड़ेगा। स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड्स। सो स्क्वेयरिंग करने के बाद किसका स्क्वायर हो जाएगा, dy/dx, ऐसा हो जाएगा स्क्वायर। आप करोगे d2y/dx², ऐसा नहीं, dy/dx ब्रैकेट का स्क्वायर हो जाएगा, इज इक्वल टू माइनस का स्क्वायर हमेशा मालूम है आपको प्लस ही रहता है, m का स्क्वायर m स्क्वायर, y का y²। सो ये हो गया m स्क्वायर y² अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसका स्क्वायर रूट निकल गया, राइट। चलो 1 माइनस एक्स स्क्वायर यहाँ पे है ना, इसको यहाँ पे ले लो, ये आएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू dy/dx स्क्वायर इज इक्वल टू m स्क्वायर इंटू y²। ओके, चलो यहाँ तक तो आ गए हम। अब आगे क्या करना है, इसको फिर से एक बार डिफरेंशिएट करना है, दोबारा डिफरेंशिएट करना है। सो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x वी गेट, राइट। अब मुझे फिर से एक बार डिफरेंशिएट करना है। अगर यहाँ पे डिफरेंशिएट करना है तो आप देखो, यहाँ इन दोनों को प्रोडक्ट है तो u इंटू v वाला रूल अप्लाई करना पड़ेगा। सो u एज इट इज 1 माइनस एक्स स्क्वायर एज इट इज इंटू डेरिवेटिव ऑफ दिस, इसका डेरिवेटिव लेने के बाद ये 2 नीचे आएगा, 2 इंटू dy/dx एंड 2 माइनस 1, बट फिर से इसका डिफरेंशिएशन करना है, डबल डिफरेंशिएशन करने के बाद कितना आएगा, दैट इज डिफरेंशिएशन करने के बाद कितना आता है, d2y/dx²। ओके, क्या किया ठीक से देखो, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इनटू इसका डेरिवेटिव ये आएगा 2 नीचे, dy/dx 2 माइनस 1 तो 1, बट इसका फिर से एक बार डेरिवेटिव वो आएगा d2y/dx²। ओके, अब दिस फंक्शन एज इट इज प्लस सेकंड फंक्शन मींस dy/dx होल ब्रैकेट स्क्वायर एज इट इज इनटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव, 1 का तो 0 आता है, x स्क्वायर का दिस इज माइनस 2x आएगा, राइट ना, माइनस है ना, माइनस 2x आएगा, इज इक्वल टू m स्क्वायर का m स्क्वायर कांस्टेंट है, y स्क्वायर का 2y इंटू dy/dx, y स्क्वायर का 2y, बट विथ रिस्पेक्ट टू x करना है तो dy/dx। ओके, चलो तो आप क्या कर सकते हो, आप यहाँ पे dy/dx से, यहाँ पे भी dy/dx से, यहाँ पे भी dy/dx, सब तरफ से dy/dx कॉमन निकालो। चलो तो ये 2 एज इट इज रख लेता मैं, यहाँ पे 1 माइनस एक्स स्क्वायर लिख लेता, dy/dx को कॉमन करना है तो कौन बचेगा, d2y/dx² बचेगा, ठीक है। यहाँ से dy/dx एक कॉमन करना है, एक को कॉमन करना है, एक dy/dx को करना है कॉमन, तो एक बचेगा मीन्स dy/dx लिखना पड़ेगा मुझे, एक माइनस 2x प्लस माइनस तो माइनस हो जाएगा, माइनस 2x इंटू dy/dx, मैं ऐसे लिख लेते हैं, प्लस माइनस माइनस 2x एंड इसका dy/dx। ओके, ब्रैकेट क्लोज। क्या किया मैंने, dy/dx यहाँ से एक कॉमन, कि टोटल टर्म में से dy/dx कॉमन, यहाँ से dy/dx कॉमन निकाला जो है उसको लिखो यहाँ पे dy/dx इक्वल टू, ये तो एज इट इज है 2m² इंटू dy/dx, राइट। दोनों तरफ dy/dx है आपका, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में, यहाँ आने के बाद डिवाइड हो जाएगा, तो डायरेक्टली कैंसिल हो जाएगा, डायरेक्टली क्या हो जाएगा, कैंसिल। प्रूफ क्या करना है हमें, 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू d2y/dx², राइट। यहाँ पे अगर आप देखोगे ठीक से तो 2 यहाँ पे भी, 2 यहाँ पे भी, 2 यहाँ पे भी, सब टर्म को क्या करो 2 से डिवाइड करो, डिवाइड ईच टर्म बाय 2, डिवाइड ईच टर्म बाय 2 वी गेट, तो क्या मिलेगा,
देखो ए टू कैंसिल, ये वाला 2 भी कैंसिल, तो रहेगा कितना 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, ओके, माइनस एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स, राइट। ये दो टर्म तो मिल गए आपको, यहाँ ये वाला 2 भी कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे आएगा ये जो माइनस प्लस एम स्क्वायर वाई है वो यहाँ पे आएगा माइनस एम स्क्वायर वाई इक्वल टू 0, क्योंकि इस साइड में कुछ भी नहीं, हेंस द प्रूफ, हेंस द प्रूफ, नहीं तो हेंस द प्रूफ। ओके, हो गया आपका, इस टाइप करना था आपको प्रूफ, बहुत इजी क्वेश्चन था, ओनली यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग लगाना है, इस जगह पे क्या करना है आपको, according to the given we have to put the values of sin t and e to the power mt, and then further we have to differentiate, okay, so we get the final answer। okay, इस टाइप आपको करना था, ये वाला क्वेश्चन बहुत इजी क्वेश्चन था, इसमें लेते सब कुछ भी नहीं, ओनली आपको समझना है। अब इस वाले टाइप के क्वेश्चंस आप बोलोगे सर आपको कैसे आता है, तो प्रैक्टिस करना पड़ेगा, हर एक तरीका अप्लाई करना पड़ेगा, तभी आपको उसका वे मालूम हो जाएगा कि कौन से वे से करने के बाद आंसर कैसे आता है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको मेहनत करनी पड़ेगी, प्रैक्टिस करना पड़ेगा, बार बार उसको सॉल्व करना पड़ेगा, तो आपको अपने आप में समझ में आएगा कि कौन सा स्टेप फॉलो करना है, कौन सा वे फॉलो करना है, कैसे एग्जाम्पल को हैंडल करना है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे हम फोर्थ वन, y इज इक्वल टू x प्लस tan x, फोर्थ वन y is equal to x plus tan x, right, and show that cos square x into d2y by dx square minus 2y plus 2x is equal to 0। चलो, तो इसको करना है हमें। So the given that y is equal to, first of all y is equal to x plus tan x, इसको डिफरेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू x, क्या आता है देखो, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, क्योंकि x पैरामीटर है, dy by dx is equal to x का 1 आएगा, tan x का करोगे आप तो sec square x आएगा, एंड आपको तो प्रॉपर्टी मालूम है 1 plus tan square x is equal to sec square x, तो sec स्क्वायर के बदले क्या पुट करना है आपको, 1 plus tan square x पुट करना है, कर लो यहाँ पे dy by dx is equal to 1 plus tan square x, किसके बदले, sec square x के बदले मैंने क्या पुट कर दिया 1 plus tan square x, राइट। बट मेरे पास अब क्या आने वाला है बाद में, dy by dx is equal to 1 plus 1 तो 2 हो जाएगा, tan square x हो जाएगा, ये tan square x हो जाएगा। ओके, यहाँ तक तो समझ में आया, से दिस इक्वेशन नंबर 1। अब मैंने tan में क्यों किया, sec में कोई नहीं चल रहा था, sec में भी चलेगा बट कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, इसलिए प्रॉपर्टी अप्लाई करके मैंने ऐसा सॉल्व करके रखा है यहाँ पे, आगे देखेंगे कुछ होता है क्या। चलो, इसका फिर से एक बार डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, कर लेते हैं। डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x वी गेट, इसका डिफरेंशिएशन करना है मींस dy by dx लगाना है, इसको ये आएगा dy by dx, 2 का डिफरेंशिएशन 0 आता है, सब लोगों को मालूम कांस्टेंट है, tan स्क्वायर x का कितना आता है, जैसे कि x रेज़ टू n का कर दिया n into x रेज़ टू n minus 1, सेम उसी टाइप करना है आपको, 2 तो नीचे आएगा, यहाँ पे आएगा tan x, बट tan x का फिर से डिफरेंशिएशन, tan x का डिफरेंशिएशन करोगे तो वो आएगा sec square x, वो कितना आएगा sec square x। ओके, चलो आगे क्या करना है, आगे क्या करना है वो देखना है हमें। आप देख यहाँ पे कितना आएगा, ये d2y by dx square is equal to, ये तो आएगा 2 tan x into sec square x को मैं लिखता हूँ 1 upon cos square x, चलेगा। क्यों लिखा है यहाँ पे cos square x है, तो हमें cos square x की जरूरत थी, इसलिए sec square x को कैसे लिखा, मैंने लिख लिया 1 upon cos square x, 1 upon cos square x। चलो, तो आगे और स्टेप को क्या करना है आपको, ये फॉलो करते रहे हैं। cos square x जो है ना डिवाइड, उसको उस साइड में ले लो, वो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, कर दो मल्टीप्लिकेशन कितना आता है देखो, cos square x को शिफ्ट करना है। नेक्स्ट स्टेप
क्या आती है देखेंगे यहाँ पे। सो द नेक्स्ट स्टेप इज cos square x से डिवाइड, इस साइड में जाके मल्टीप्लाई होगा, therefore cos square x into d2y by dx square, right, d2y by dx square, ये 2 tan x is equal to 2 tan x रहेगा, 2 tan x लिख लो as it is, cos square x into d2y by dx square, 2 into tan x के बदले कुछ पुट कर सकते हैं क्या आप, देखो यहां से कर सकते हो ना, tan x के बदले क्या पुट कर सकते हो, देखो y प्लस का माइनस x हो जाएगा, यहाँ पे रहेगा tan x, सो tan x के बदले पुट कर सकते हो, कर लो। tan x के बदले क्या पुट करना है, y माइनस x पुट करना है, यहाँ पे लिख लो y माइनस x, तो ये कितना आता है, cos square x into d2y by dx square is equal to 2y minus 2x, 2 से मल्टीप्लाई किया 2y minus 2x, अरेंज कर लो इन टर्म्स, ये दोनों टर्म इधर लेके आओ, तो आएगा आपका आंसर cos square x into d2y by dx square minus 2y plus 2x equal to 0, hence proved, ओके, हो गया आपका आंसर, फाइनली आ गया, ठीक है। सो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 5, इस टाइप आपको क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करना था, और एक देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 5 को कैसे सॉल्व करना है यहाँ पे, ओके चलो तो 5th करेंगे यहाँ पे, y is equal to e to the power ax into sin x, okay, sin bx not sin x, sin bx, show that y2 is equal to, show that y2 is equal to 2ay1, 2ay1, ठीक है, यहाँ पे लिख लेता मैं, मेरे पास जगह नहीं, यहाँ पे लिख लेता y2 is equal to 2ay1 plus a square plus b square into y, a square plus b square into y equal to 0, equal to 0। अब इसको हमें प्रूव करना है, अब कैसे करना है ये वाला क्वेश्चन, ठीक है, आप सोचोगे इस टाइप का क्वेश्चन है, थोड़ा सा अलग टाइप से दिख रहा है, अब इसको कैसे सॉल्व करना है, अब नया क्वेश्चन है, थोड़ा सा मेरे लिए भी आपके लिए भी, देखेंगे कैसे सॉल्व करना है, ठीक है, चलो तो देखते हैं कैसे सॉल्व करना है, कैसे हैंडल करना है उसको। सो ये y1 एंड y2 का मीनिंग आप पहले जान लीजिए, y1 मींस क्या होता है, जो y1 है ना, y1 इज फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव dy by dx, एंड जो y2 है ना, y2 का मतलब है d2y by dx, ये दोनों याद में रखो, ओके। चलिए हमारे पास फंक्शन कौन सा है, उस ले लो फंक्शन y इज इक्वल टू क्या है, e to the power ax into sin bx into sin bx, राइट ना, शो दैट, हमें ये वाला शो करना है, चलो तो इसको डिफरेंशिएट करते हैं पहले, राइट, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x वी गेट, अगर मैं इसको डिफरेंशिएट कर दूं तो मुझे मिलेगा dy by dx इज इक्वल टू, ये u into v वाला रूल अप्लाई करना ही पड़ेगा आपको यहाँ, सो u एज इट इज into डेरिवेटिव ऑफ दिस, साइन का डेरिवेटिव आएगा cos bx, बट bx का आएगा v, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकंड, प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज sin bx एज इट इज into डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, e to the power x का डेरिवेटिव e to the power x into ax का फिर से आएगा a, ओके, सिंपली यहां से आप देखो तो आपको पता चलेगा e to the power ax दोनों तरफ है, कॉमन निकालो, अंदर क्या बचेगा, b into cos bx प्लस a into sin bx, a into sin bx, क्लोज ब्रैकेट, दिस इज dy by dx and this is nothing but is also y1, dy by dx को क्या बोलेंगे हम, y1, सो ये वाला वैल्यू जो है वो किसका है, एक्चुअली वो y1 का वैल्यू, राइट, चलो तो हमारे पास y1 का वैल्यू मिल गया, इसको फिर से एक बार डिफरेंशिएट करो तो y2 का वैल्यू भी मिलेगा, चलो तो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x वी गेट, इसको डिफरेंशिएट करने के बाद क्या मिलेगा, d2y by dx स्क्वायर,
राइट ना। इस साइड को डिफरेंशिएट करो, डबल डिफरेंशिएशन d2y बाय डी स्क्वायर। यहाँ पे फिर से एक बार क्या करना पड़ेगा आपको, u इंटू v वाला रूल अप्लाई करना पड़ेगा। ओके, एक मिनट, हाँ ओके ओके ठीक, u इंटू v वाला रूल। सो u कौन सा आएगा, e टू द पावर ax एज इट इज इंटू डेरिवेटिव ऑफ दिस, v तो कांस्टेंट है, cos का डेरिवेटिव माइनस साइन है, राइट ना। तो माइनस में यहाँ पे लगा था माइनस साइन bx एंड bx का फिर से एक बार डेरिवेटिव b एज इट इज रख लिया, cos का डेरिवेटिव माइनस साइन x माइनस साइन bx का आएगा b प्लस यहाँ पे देखो a एज इट इज रहेगा, साइन bx का डेरिवेटिव आएगा cos bx एंड bx का डेरिवेटिव b क्लोज। ओके, फर्स्ट एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड एज इट इज, सेकंड मींस b into cos bx plus a into sin bx into derivative of first e to the power x का डेरिवेटिव e to the power ax into ये आएगा ax का डेरिवेटिव a आएगा। ओके चलो, तो आगे क्या आएगा, कैसे करोगे आप आगे यहाँ पे देख लीजिए आप, e to the power जो है ax, फिर से एक बार कॉमन कर लो उसको, e to the power ax को। चलो, तो आगे क्या क्या बचेगा आपके पास, यहाँ पे बचेगा दिस इज फर्स्ट टर्म, दिस वन इज सेकेंड टर्म, दोनों में से कॉमन किसको कर लिया आपने, e टू द पावर ax को कॉमन कर लिया, इस वाले टर्म को कॉमन करने के बाद अंदर क्या बचेगा मेरे पास, b इंटू बी माइनस बी स्क्वायर साइन इंटू बी एक्स। ओके, a इंटू बी प्लस ए बी इंटू कॉस बी एक्स। ओके, ब्रैकेट क्लोज करो, यहाँ पे देख लीजिए आप, b इंटू ए प्लस ए बी इंटू कॉस बी एक्स हो जाएगा, राइट, क्योंकि ये बाहर है ना, a इंटू बी, a इंटू ए प्लस ए स्क्वायर इंटू साइन बी एक्स एंड नाउ ब्रैकेट क्लोज, नाउ ब्रैकेट क्लोज। अब अपने हिसाब से करना है थोड़ा सा काम, e टू द पावर ax रखना है, यहाँ पे देखो ab cos bx ab cos bx कितने बार, 2 टाइम्स, यहाँ पे अंदर देखो sin bx यहाँ पे भी है, sin bx यहाँ पे भी, sin bx को कॉमन कर लीजिए, मेरा मानना है कि sin bx को आप कॉमन कर लीजिए, कॉमन ब्रैकेट में कौन रहेगा, यहाँ पे a स्क्वायर, यहाँ पे रहता है माइनस बी स्क्वायर, राइट। चलो, यहाँ पे कितना रहता है, 2ab इंटू कॉस bx रहते हैं। ओके चलो, तो आगे क्या करना है हमें, आगे कुछ हो जाएगा, a टू द पावर ax, प्रूव क्या करना है हमें, हाँ चलो प्रूव करना है, प्रूव करेंगे, ठीक। तो ये वाला वैल्यू हो गया। नेक्स्ट आगे कुछ हो सकता है इसमें, कुछ भी नहीं होगा, इतना ही बस। इसके बाद क्या करना है, इसके बाद हमें करना है कंसीडर करना है आपकी जो शो दैट करना था ना, y2 इज इक्वल टू, राइट ना, शो क्या करना था हमें, शो दैट y2 इज इक्वल टू 2ay1 प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इंटू y1 प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इंटू y1 इक्वल टू 0, राइट ना। ये वाला प्रूव करना था ना, y2 माइनस, नॉट y2 माइनस इक्वल टू नहीं, y2 माइनस दिस इज इक्वल टू 0 प्रूव करना है। सो इसमें से हम लेफ्ट हैंड साइड कंसीडर करेंगे। अब इसके आगे हो जाएगा बट कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, तो कॉम्प्लेक्स नहीं करना हमें, इसके लिए डायरेक्टली क्या कर लो, जब भी कॉम्प्लेक्स हो जाएगा तब भी क्या करना है आपको, LHS कंसीडर करना है। सो कंसीडर LHS, अब LHS कंसीडर करके 0 आंसर दिखाना है। ओके, सो LHS इज y2 minus 2ay1 plus a square plus b square into y1, y2 means कौन, d2y by dx square, पहले बताया था हमने आपको, माइनस 2a, y1 means कौन है, dy by dx प्लस a square plus b square, y1 means कौन है, y1 या y, यहाँ पे y1 या y only, y1 नहीं y, यहाँ पे y only, y तो y means y as it is रखना है, y का वैल्यू आपके पास है, वो पुट कर दो, e to the power ax into sin bx। ओके श्योर, ठीक है, इतना आपको कंसीडर करना था। अब आगे देख लीजिए कैसे सॉल्व करना है इसको।
d2y/dx² का वैल्यू बताओ, वो वाला वैल्यू यहाँ पे d2y/dx², ये वाला वैल्यू जो है ना d2y/dx², ये वाला वैल्यू लिख लो, e टू द पावर ax इंटू साइन bx इंटू a² माइनस b² प्लस 2ab इंटू cos bx, 2ab इंटू cos bx, ओके ब्रैकेट क्लोज, माइनस 2a इंटू dy/dx का वैल्यू लिख लो, dy/dx का वैल्यू कितना है, dy/dx इज नथिंग बट ये जो है ना y2b है, dy/dx का वैल्यू कितना है, e टू द पावर ax यहाँ पे लिख लो, इंटू लिखो b इंटू cos bx प्लस a इंटू साइन bx, ब्रैकेट क्लोज, यहां तक कर लिया एज इट इज, इसका वैल्यू लिख लिया, प्लस a² प्लस b² लिखो, प्लस a² प्लस b² इंटू e टू द पावर ax इंटू साइन bx, ओके। चलो आगे क्या आएगा, आगे कुछ हो सकता है क्या, देखो आगे क्या होता है, देखो इसको आगे क्या करना है हमें, अगर आप मल्टीप्लाई करोगे अंदर तो क्या आएगा आपके पास, अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिलेगा, एक बार फिर से देखो, एक बार आपके पास फिर से एक बार क्या है, तीन टर्म, दिस इज फर्स्ट टर्म, दिस इज सेकंड टर्म, दिस इज थर्ड टर्म, राइट। तीनों के टर्म में आप अगर ठीक से देखोगे तो आपके पास e टू द पावर ax से e टू द पावर ax से e टू द पावर ax, तो e टू द पावर ax को क्या करो, फिर से एक बार कॉमन करो, सो यहाँ पे आएगा e टू द पावर ax कॉमन, क्या क्या बच रहा है यहाँ, राइट। आप ठीक से देखोगे तो a² sin bx आएगा, लिखो a² sin bx माइनस b² sin bx, माइनस b² sin bx, मल्टीप्लाई किया, कुछ नहीं किया मैंने, प्लस 2ab इंटू cos bx लिख लिया एज इट इज, ओके, ओनली इसका मल्टीप्लिकेशन एज इट इज लिख लिया, ये देखो माइनस 2a इंटू b इंटू cos bx, तो माइनस 2ab इंटू cos bx आएगा, इसने इसको मल्टीप्लाई किया, माइनस प्लस माइनस, इसने इसको मल्टीप्लाई कर लिया, 2a² 2a इंटू a 2a² sin bx, ओके। अब क्या बच रहा है, a² इंटू sin bx प्लस a² इंटू sin bx प्लस b² इंटू sin bx प्लस b² इंटू sin bx, ब्रैकेट क्लोज। अब कैंसिल कौन कौन हो रहा है, यहाँ पे देखिए, माइनस b² sin bx प्लस b² sin bx कैंसिल, ये वाली टर्म, प्लस a² sin bx प्लस a² sin bx नहीं हो रहा है कैंसिल, प्लस 2ab cos bx माइनस 2ab cos bx, ये वाली टर्म कैंसिल, राइट। यहां पे देखो आप a² sin bx एंड a² sin bx, हाउ मेनी a² sin bx, ये वाला है 2 sin² bx 2a² sin bx एंड ये माइनस 2ab a² sin bx, मींस ये वाला टर्म एंड ये वाला टर्म तीनों भी आपस में कैंसिल, सो बचेगा कितना, which is equal to a to the power ax into 0, कुछ भी नहीं मींस 0 is equal to 0 आएगा, 0 into anything is equal to 0, तो आपका आंसर आपको मिल गया, that is RHS। सो इस टाइप आपको ये वाला क्वेश्चन करना था, बहुत इजी था, लेंथी लग रहा है बट वैसे लेंथी कुछ भी नहीं, आपको अगर कंसेप्ट क्लियर है तो डेफिनेटली आपको ये एग्जांपल आएगा, ओके। चलो तो फ्रेंड्स, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू एवरीबॉडी।